Hello guys, in this class we'll discuss about international trade, right? In this case we will discuss about two cases. Number one, when domestic country should export goods, right? And why? Because they will export because they will gain. And when domestic country should import goods, why? Again because of gain, right? So let's start with case number one. Case number one says that if domestic country price is less than world price, then domestic country should export goods. Let's see how. So we are doing this with the help of the diagram. The diagram is, this is your quantity, this is your price, right? This is, remember that this is your domestic demand, guys. This is your domestic supply. So call it S, call it T, and we know that this is your equilibrium price and this is your equilibrium quantity, which is Q star and PD. Now I am calling this as PD, not P star. The reason being, ये जो PD आया है वो कौन सा प्राइस है? ये वाला प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में प्रिवेल करता है. बिफोर द ट्रेड दिस इज अ सिचुएशन, बट व्हाट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड वी नो दैट in the world market this is the price, which is PW. Now in this case domestic producer wants to sell to the foreign market because they are getting the higher price. So why they want to sell to the foreign market? Because higher the price, higher the profit. So obviously they want to sell at the foreign market. So if they want to sell at the foreign market, they will charge price PW, and in that case your domestic demand reduces to QD and your domestic supply will increase from Q star to QS. Now guys, remember one thing, the distance between QD to QS is nothing but exports. ध्यान से देखो इसको कैसे, यहाँ तक तो डोमेस्टिक डिमांड है ही, राइट, बट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल करना चाहता है, वो QS अमाउंट तक सेल करना चाहता है. तो ये जो अमाउंट बचा, ये क्या होगा इस अमाउंट का? ये सारा अमाउंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट. सो इन दिस केस वी नीड टू डू कंज्यूमर सरप्लस बिफोर ट्रेड एंड we need to take the condition of after trade. So let's see what is the condition. So guys, consumer surplus before trade will be, let's call it, this area is A, B, C, D, E and F, right. So before trade के लिए हमें प्राइस कौन सा चाहिए? PD. So in this case our area will be A plus B plus C. Producer surplus के लिए area will be E plus F. After trade consumer surplus के लिए area will be, after trade का मतलब when price is PW, consumer surplus के लिए area will be only A. Producer surplus के लिए area will be B plus C plus D plus E plus F. Total surplus equals to A plus B plus C plus E plus F. Here total surplus equals to A plus B plus C plus D plus E plus F. So remember that after trade, when home country or the domestic country will export, then producer will gain area D as well. Yeah. Now how to calculate area D? So we can calculate area D, since this is a triangle, therefore half into base. Now base is export into height. Now how to measure height? Now in this case height is nothing but the distance between PW and PD. Since PW is more, therefore PW minus PD, right. So this is
the area that we can calculate, and this is nothing but area D. This is the area of gain, right? So let's do one question related to this concept. Let's say QD equals to, or quantity demand in domestic country guys, equals to 90 minus 2p, QS equals to 3p, price in the world market equals to 25. You need to calculate gain for exporting country. गाइस पहले एक बार ये चेक कर लेना कि क्या सच में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं. वो कैसे चेक होगा, आपको पहले पीडी निकालना होगा. और पीडी कैसे निकालोगे, यू नीड टू इक्वेट क्यूडी विद क्यूएस. जब आप क्यूडी विद क्यूएस को, मतलब क्यूडी के साथ क्यूएस को इक्वेट करोगे, यू विल गेट 90 माइनस 2p equals to 3p. If you solve this, you will get p as 18, या और pd as 18. अब आपको क्या पता है, since 18 is less than 25, in other words pd is less than pw, therefore the home country should export in order to gain, right? अब क्या होगा, हमें गेन ही निकालना है. गेन हमें पता है कि गेन इज नथिंग बट एरिया डी. हाउ टू फाइंड दैट, हाफ इंटू एक्सपोर्ट इंटू PW माइनस PD. तो लिख लेते हैं फटाफट, हाफ इंटू एक्सपोर्ट. अब देखो एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है इस डायग्राम में. आपको PW वाला प्राइस को इक्वेट करना होगा डिमांड के साथ. तो जैसे आप PW वाला प्राइस इक्वेट करते हो डिमांड के साथ, व्हाट यू विल गेट, 90 माइनस 2 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 40. सो दिस इज नथिंग बट 40, राइट. नाउ QS निकालने के लिए क्या करना है, PW वाला प्राइस इक्वेट करना है सप्लाई के साथ. सो 3p, 3 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 75, राइट. सो दिस इज अ 75. तो इसमें एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेंगे, 75 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 35. सो हाफ एक्सपोर्ट्स विच इज 35 इंटू PW माइनस PD. तो 25 माइनस 18 विच इज नथिंग बट 7. If you solve this, you will get area D as 122.5. So guys, this is your answer, right? This is how you need to solve numerically. So let's move on to case number 2. Case number 2 says that if PD is more than PW, then the domestic country should import goods. Then the domestic country should import goods. Why? The reason being because they will gain from that. Let's see how. So guys, in this case remember one thing कि हम लोग इसको diagrammatically ही देख रहे हैं पहले. So this is quantity, this is price, this is domestic demand, this is domestic supply, this is your equilibrium price, this is your equilibrium quantity if there is no trade, Q star and PD. अब मुझे वो वाली सिचुएशन चाहिए when PD is more than PW. So let's say if there is a possibility of trade and we know that PW is lesser than PD, so this is PW. अब in this case हमें बायर की तरफ से सोचना है. अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो, जब there is a possibility of trade and you are the buyer, you want to pay higher price or you want to pay lower price? Obviously lower price. Therefore as a buyer you want to pay PW. So जब प्राइस आपका PW हो जाएगा, द सेलर, द डोमेस्टिक सेलर wants to supply only this much, call it QS. The domestic buyer will wants to buy this much, call it QD. तो QS का मतलब क्या, आपको QS अमाउंट 0 से लेके QS तक आपको डोमेस्टिक सेलर प्रोवाइड कर रहा है एट प्राइस PW. बट जो रिमेनिंग डिमांड है, ये जो एक्सेस डिमांड है, वो कैसे पूरी होगी, वो होगी इम्पोर्ट से पूरी.
सो यू विल इम्पोर्ट दीज गुड्स। अब हमें क्या देखना है कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं कि हमें सच में गेन हो रहा है या फिर गेन नहीं हो रहा। सो क्या करना है, बिफोर टैरिफ, आफ्टर टैरिफ, कंज्यूमर सरप्लस, reducer surplus, total surplus and gain। या अब मुझे एक चीज़ का आंसर बताना फटाफट। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, लेट्स से ए, बी, सी, डी एंड ई। व्हाट इज योर कंज्यूमर सरप्लस इन दिस केस बिफोर ट्रेड? सो बिफोर दैट प्राइस इज पी डी, कंज्यूमर सरप्लस इज ए। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? सो इन दिस केस प्रोड्यूसर सरप्लस इज बी प्लस ई। टोटल सरप्लस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ई। गेन के लिए अभी हमें आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सो आफ्टर ट्रेड व्हाट इज योर कंज्यूमर सरप्लस? सो अब हमें प्राइस देखना है पी डब्ल्यू। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। व्हाट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर ट्रेड? द एरिया ई। व्हाट इज योर टोटल सरप्लस? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। व्हाट इज योर गेन? अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस ई, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस ई, एडिशनली वी हैव c प्लस डी एज वेल, देयरफॉर द गेन इज c प्लस डी। तो अगर आप इंपोर्ट करते हो वेन एवर योर पी डी इज मोर देन पी डब्ल्यू, देन देर इज गेन, देयरफॉर यू विल import goods. So guys, now let's talk about import tariff. Now what is import tariff? मुझे एक चीज़ का आंसर दो पहले। import tariff का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, मुझे अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है, देन आई विल चार्ज import tariff। इसका मतलब क्या, जो भी आप import करोगे मैं उस पर कुछ टैक्स चार्ज करूँगी, right? That is nothing but import tariff. So government revenue in the case of import tariff equals to imports after tax into tax or into tariff. याद रखना, import after tax into tariff is your government revenue. अब इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, right? So let's say this is the quantity, this is the price, right? This is the domestic demand, this is the domestic supply, yeah. This is your PT, this is your QD or Q star. Now in this case before trade की situation ये थी, but let's say if there is a possibility of trade and you got to know that कि price in the world market is this, so this is your PW. अब मुझे एक चीज़ का आंसर दो, this is before tariff. अब जैसी आफ्टर टैरिफ वाली सिचुएशन आती है तो क्या होगा, तो जैसी आफ्टर टैरिफ वाली सिचुएशन आती है अब आपको PW प्लस T प्राइस देना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका PW वाली लाइन विल शिफ्ट अपवर्ड। सो दिस इज योर PW प्लस T। गाइज यहाँ पे प्लीज़ अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, पहले आप ये इंपोर्ट कर रहे थे, राइट? So let's say this is QS, this is QD and this is the distance between these two is your import. But after tariff आप लोग क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना, आफ्टर टैरिफ जैसी PW वाली लाइन ऊपर शिफ्ट हुई, this is your quantity supplied QS dash in the domestic country, this is your quantity demand in the domestic country. डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड डिक्रीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ इन दिस केस ध्यान से देखना, अब हमें सारी सिचुएशंस को कंपेयर करना है। लेट्स कॉल दिस A, B, C, D, E, F, G, H, I and J, right? So let's see कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। Again we need to do
बिफोर टैरिफ, आफ्टर टैरिफ। सो पहले बिफोर टैरिफ के बारे में देखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। सो इन दिस केस व्हाट इज बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस? बिफोर टैरिफ का मतलब प्राइस इज पी डी, कंज्यूमर सरप्लस इज ए, राइट। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। व्हाट इज बिफोर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस? ध्यान से देखना, ये एरिया दैट इज बी ई एंड जे, बी ई एंड जे, बी प्लस ई प्लस जे। व्हाट इज योर टोटल सरप्लस? ए प्लस बी प्लस ई प्लस जे। अब बात करते हैं आफ्टर टैरिफ, सॉरी आफ्टर ट्रेड की। दिस इज बिफोर ट्रेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड में हमें क्या करना है? हमें पी डब्ल्यू प्राइस को कंसीडर करना है। अभी हमने टैरिफ की बात नहीं करी, हमने ट्रेड की बात की है। सो आफ्टर ट्रेड हमें पी डब्ल्यू प्राइस को कंसीडर करना है। इन दिस केस व्हाट इज योर कंज्यूमर सरप्लस? ध्यान रखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारा आपका कंज्यूमर सरप्लस है। मैं कैसे लिख रहा हूँ? ए टिल आई इज योर कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस इन दिस केस? योर प्रोड्यूसर सरप्लस इज ओनली जे। What is your total surplus? Your total surplus is A to J. अब हम बात करेंगे आफ्टर इम्पोर्ट टैरिफ की। We will talk about आफ्टर इम्पोर्ट टैरिफ। अब यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं हम लोग क्या होती है। यहाँ पे आपको प्राइस पी डब्ल्यू प्लस टी के साथ चलना है। What is your consumer surplus in this case? So in this case consumer surplus is A plus B plus C plus D. What is your producer surplus in this case? Your producer surplus is E plus J. Guys, यहाँ पे ना एक और चीज़ है हमारे पास which is government revenue. So मैं यहाँ पे government revenue लिख रहा हूँ। So government revenue क्या है? मैंने आपको बताया था, imports after tariff. So this is your imports after tariff into tax. ये इन दोनों का डिस्टेंस आपका टैक्स है। सो आई शुड शेड द रीजन। दिस रीजन इज नथिंग बट गवर्नमेंट रेवेन्यू, या सो गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जी प्लस एच, राइट। तो अब हमने सारी चीज़ देख ली। इन दिस केस व्हाट इज योर टोटल सरप्लस? इफ यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई plus G plus H plus J. Now guys remember one thing, अगर आप यहाँ से इस वाले टोटल सरप्लस से इसको कंपेयर करते हो तो आपको पता है कि हमारे दो एरिया मिसिंग है यहाँ पे, एंड वी आर कॉलिंग दीज टू एरियाज एज डेड वेट लॉस। बिकॉज ऑफ टैरिफ देर इज डेड वेट लॉस एंड दैट इज इक्वल्स टू एरिया F एंड एरिया I. That is your dead weight loss, area F and area I. अब प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, ये एक बार DAC में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ टू फाइंड एरिया F एंड एरिया I. सो अगेन हमें पता है ट्राइंगल है, सो एरिया F इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस. नाउ व्हाट इज योर बेस? द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज QS डैश माइनस QS इनटू हाइट. हाइट हमें पता है कि इसकी हाइट कितनी है, इक्वल्स टू टैक्स. एंड सिमिलरली एरिया आई किसके इक्वल है? हाफ इनटू बेस. नाउ व्हाट इज योर बेस? क्यू डी माइनस क्यू डी डैश इनटू टैक्स. So if you add these two areas you will get dead weight loss. Dead weight loss का दूसरा नाम क्या है? Loss of welfare, yeah, loss of welfare. So let's see one question. This question is of Delhi School of Economics 2006, question number 51. Yeah, just give me a second, I need to insert the question for you. So guys, this is your question. Just let's read the question first.
question says that suppose that in a particular country the inverse demand curve of a certain good is given by, so QD की बात कर रहे हो, P equals to A minus Q, where P is price and Q is quantity and is a positive constant. The market supply curve of a competitive domestic industry is given by P equals to BQ. So QS की बात कर रहे हो, P equals to BQ. The country can import any amount of the same good at an exogenously given world price P star. So P star equals to PW. एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपोर्ट. इंपोर्ट से आपको क्या चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि डोमेस्टिक प्राइस शुड बी मोर दैन पी स्टार और वर्ल्ड प्राइस. ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको यार इतना क्वेश्चन पढ़ के, राइट. इफ in order to raise the revenue the government imposes a tariff of T per unit on imports, it will result in definite loss of welfare of. So guys, in this case again we are making the diagram, or let's work on the previous diagram that we, चलो एक बार diagram बना ही लेते, कोई बात नहीं. हाँ, so call it quantity, price. अब मुझे एक चीज़ का आंसर देना, QD कितना है, P इक्वल्स टू A माइनस Q. सो जल्दी से डिमांड बनाते हैं फटाफट. दिस इज द डिमांड, याद रखना ये दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, राइट. QS कितना है, BQ. अभी के लिए आई एम एज्यूमिंग B इक्वल्स टू 1 जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन. वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, राइट. सो चलो इसको B ही लेके चलते हैं, 1 नहीं लेके चलते हैं, right. So this is your supply and your equilibrium is PD and this is your Q star. मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि आप इंपोर्ट करोगे तो आपको वर्ल्ड का प्राइस भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. दिस इज PW. वो एक और चीज़ बोल रहा है कि अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी लगा दिए टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज. सो दिस इज PW प्लस T. आपको डेडवेट लॉस निकालना है तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, एरिया 1 एंड एरिया 2, राइट. पहले हम एरिया 1 की बात करते हैं. एरिया 1 निकालने के लिए हमें पहले QS निकालना पड़ेगा एंड QS डैश निकालना पड़ेगा. देखो QS कैसे निकलेगा, जब आपका प्राइस PW होगा, और PW का मतलब क्या है, P स्टार होगा, और S की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट. सो आपको पता है कि QS क्या गिवन है, P इक्वल्स टू BQ, और इन अदर वर्ड्स Q इक्वल्स टू P बाय B. इक्वेट दिस विद PW, राइट. या फिर इसको PW के साथ अगर देखते हो तो आपका आंसर आएगा Q इक्वल्स टू P स्टार बाय B. सो दिस इज नथिंग बट P स्टार बाय B. सिमिलरली अब आपको PW प्लस T प्राइस पुट करना है, तो जब आप क्वांटिटी की बात करोगे ये आएगा P स्टार प्लस T बाय B. सो एरिया 1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाफ इनटू बेस. अब बेस क्या है आपका, P स्टार प्लस T बाय B माइनस P स्टार बाय B इंटू हाइट. हाइट कितना है, टैक्स. If you solve this, you will get half into T by B into T, which is equals to T square by 2B, right. T square by 2B. This is area 1, right. अब एरिया 2 की बात करते हैं हम लोग, which is half into base. अब देखो बेस क्या है, दिस इज QD डैश, दिस इज QD. पहले QD की बात करते हैं तो प्राइस क्या होना चाहिए था, P स्टार. यहाँ पे आ जाओ P स्टार. सो ये क्या होगा, इसको क्वांटिटी के टर्म्स पे निकालते हैं. सो वेन एवर यू नो दैट प्राइस इक्वल्स टू A माइनस Q, देयरफॉर Q इक्वल्स टू
A minus P. So whenever price is P star or PW, this is equals to A minus P star. So QD is A minus P star. Similarly, QD dash is A minus P star plus T, right? So अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, हाफ इंटू बेस, दैट इज A माइनस P स्टार माइनस A minus P star minus T into T. This is area 2. If you solve this, you will get half into, so if you open this, you will get A minus P star minus A plus P star plus T into T, right? We can cancel this out. So we have T square by 2. Remember that, guys, this is area 2. We need to add these two areas. If you add them, you will get T square by 2b plus T square by 2, right? And if you simplify this, you will get your answer as T square plus BT square by 2b, which is nothing but T square 1 plus b divided by 2b. So do we have this option with us? Yes, option number E.